Dear student, for NEET and JEE, very important point, chapter 12, remaining part, which is not important for Gujarat board, but very important for NEET and JEE. Here we are going to discuss method of purification organic compound. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसका प्यूरिफिकेशन कैसे हो रहा है उसका मेथड वी आर गोइंग टू डिस्कस. Once an organic compound is extracted from a natural source, yes, we can derive organic compounds from the nature or we can synthesize. Synthesize क्या रहता है? मैन मेड होता है, लेबोरेटरी में और फैक्ट्री में सिंथेसाइज होता है. In the laboratory, it is essential to purify it. When we derive from earth crust any organic compound which is not pure, there is some impurities are present into it, so we have to purify it. Various methods used for the purification of organic compound. ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्यूरिफिकेशन के लिए डिफरेंट तरह के मेथड्स अवेलेबल है. आर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द कंपाउंड एंड इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन इट. ये मेथड्स उनके बेस पर यूज किया जाता है कि अपना वाला कंपाउंड कौन सा है, इसमें इम्प्योरिटी किस तरह का प्रेजेंस है, इनके हिसाब से वी आर यूजिंग टेक्निक्स. Some common techniques used for the purification are as follows. First one is sublimation. Yes, sublimation रहता है. Then crystallization. Here name is given in detail. We will discuss about it. Sublimation, crystallization रहता है. Distillation, differential extraction or chromatography. Main 5 methods we will use the techniques for the purification of organic compound. Finally, the purity of compound is ascertained by determining its melting or boiling point. Every compound has its particular melting point or boiling point रहता है. जो अपना वाला solid compound रहेगा which melts at particular temperature, which is melting point, or liquid convert into gas at particular temperature, which is boiling point. Most of the pure compound is sharp. Sharp का meaning रहता है here fixed. Compound has fixed. Every compound has fixed melting point. So sharp melting and boiling point रहता है. New methods of checking the purity of an organic compound are based on different type of chromatography and spectroscopic technique. जो organic compound रहता है उसका purity we can check by using chromatographic method and spectroscopic technique. इनके हिसाब से हम चेक भी कर सकते हैं. First method of purification of organic compound is sublimation. Everybody knows whenever solid directly convert into gas without getting liquid state. यहाँ से solid में से direct gas बन रहा है. So ये वाला process sublimation हो गया. You learned earlier that on heating some solid substances form solid to vapor state without passing through liquid state. That process is sublimation. The purification technique based on the above principle is known as sublimation. इस तरह का method when we use that is called sublimation and is used to separate the sublimable. जो सबलाइन हो रहा है वो कंपाउंड सब्लिमेबल कंपाउंड्स कहलाएगा फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज. ड्राई आइस वी हैव टू प्यूरिफाई. देयर इज सम इम्प्योरिटी प्रेजेंट. ये वाला
इम्प्यूरिटी सबलाइन नहीं हो रहा है. So in the mixture of carbon dioxide, dry ice and impurity, when we heat, so only carbon dioxide is converting into gas. Impurities remains in the vessel, so we can separate the impurity from it. Another example रहेगा आयोडीन. इम्प्योर आयोडीन में जो इम्प्यूरिटी रहेगा वो सबलाइन नहीं होगा. ओनली प्योर आयोडीन सबलाइन होके सेपरेट हो जाएगा. आर्सेनिक का इजीली सबलाइन हो जाएगा. इसमें इम्प्यूरिटी है वो सब्लिमेट नहीं होगा. सो वी कैन सेपरेट. इन द नेप्थलीन सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैस. इम्प्यूरिटी गैस में कन्वर्ट नहीं होगा. सो जो कंपाउंड्स इजीली सबलाइन हो रहा है उसका एग्जांपल दिया. उसका सेपरेशन के लिए इम्प्यूरिटी रिमूव करने के लिए वी आर यूजिंग दिस मेथड. व्हेन द आवर कंपाउंड इज इजीली कन्वर्ट इनटू वेपर फ्रॉम सॉलिड वेयर inside it impurity is not converting into gas. So this method is very useful. Example, if asked in NEET and JEE, so it will be dry ice, iodine solid, arsenic solid and naphthalene. ये वाला रहेगा. Now another method is crystallization for the purification of organic compound. This is one of the most commonly used technique for the purification of solid organic compound. Sublimation में भी क्या solid compound का purification आ रहा था, यहाँ भी solid organic compound का purification हो रहा है. But in first case sublimation में क्या होता था, वो easily sublime हो रहा है. ये वाला solid sublime इजीली गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो रहा है. इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटीज ऑफ द कंपाउंड एंड द इम्प्यूरिटीज इन ए सुटेबल सॉल्वेंट. जो अपना कंपाउंड रहता है इसके साथ इम्प्यूरिटी भी है. सो दोनों का सॉल्युबिलिटी कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिफरेंट आता है. दोनों का सॉल्युबिलिटी सेम नहीं आ रहा है. The impure compound is dissolved in a solvent in which it is sparingly soluble at room temperature. इसमें क्या होता, जो impure compound होता है impurity वाला dissolved in a solvent in which it is sparingly soluble. ऐसा solvent we have to choose करना रहता है जहाँ पे room temperature पे ये वाला impure organic compound sparingly soluble means less soluble हो रहा है, but appreciably soluble at high temperature. But when we increase the temperature of our solvent, so इसका solubility increase हो रहा है. The solution is concentrated to get a nearly saturated solution. इसमें क्या करना होता है, जो सॉल्वेंट लिया हुआ इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज इम्प्योरिटी वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड हाई टेम्परेचर पे मैक्सिमम डिसॉल्व करना होता है. जहाँ तक वो डिसॉल्व हो सकता है वहाँ तक वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा. देन आफ्टर ऑन कूलिंग द सॉल्यूशन प्योर कंपाउंड crystallizes. Then after we have to decrease temperature. So highly saturated solution था, इसमें जो अपना प्योर कंपाउंड रहेगा वो स्पेरिंगली सोल्यूबल था. सो हाई टेम्परेचर पे सोल्यूबल था, लो टेम्परेचर पे इनसोल्यूबल. सो उसका पाउडर फॉर्म में वो स्टीयर सेटल डाउन इन द बॉटम, यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा. इम्प्यूरिटीज क्या सॉल्वेंट में रहेगा. crystallizes out and is removed by filtration. इसको क्या करना रहता है, फिल्टर पेपर लेना होता है. वहाँ पे फिल्टर पेपर वो फनेल लिया हुआ है. सो इसमें क्या रहेगा, अपना प्योर सब्सटेंस यहाँ पे आ जाएगा एज ए पाउडर फॉर्म, और इम्प्यूरिटीज और सॉल्वेंट यहाँ वेसल में आ जाएगा. द फिल्ट्रेशन मदर लिक्विड
कंटेन्स इम्प्योरिटी, यहाँ से जो लिक्विड निकलेगा वो मदर सॉल्वेंट जिसमें डिसॉल्व किया, और इम्प्योरिटी यहाँ पे आ जाएगा। प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड एज ए पाउडर फॉर्म, वो क्रिस्टलाइज हो चुका है, मीन्स पाउडर बन चुका है, वो ऊपर सेपरेट हो जाएगा। स्मॉल क्वांटिटी contains a small quantity of the compound if the compound is highly soluble in one solvent and very little soluble in other solvent. Crystallization can be satisfactorily carried out in a mixture of these solvents. Impurities, जो अपना impurities रहता है और compound रहता है, दोनों का solubility कोई particular solvent में different रहता है। इसके हिसाब से we can separate out which impart color to the solution are removed by absorbing. Yes, जो अपना फिल्ट्रेट होता है इसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड चला जाएगा, यहाँ पे इम्प्योरिटी सॉल्वेंट के साथ रहेगा। सो व्हेन वी एड चारकोल, सो जो कलर वाला इम्प्योरिटीज होगा, एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है, कार्बन का दो आइसोटोप्स आ रहा है C12 और C14, ये वाला नॉर्मल कार्बन, ये वाला एक्टिवेटेड हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर 4, ये वाला रेडियो एक्टिव है। सो ज़्यादा इजीली उसकी सरफेस पे इम्प्योरिटीज को एब्जॉर्ब कर लेगा एंड वी कैन रिमूव कलर फ्रॉम इट। ये वाला एक्टिवेटेड चारकोल, रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन बिकम्स नेसेसरी, ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन रिपीट करना होता है फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग इम्प्योरिटीज ऑफ कंपेरेबल सॉल्युबिलिटीज। जब अपना इम्प्योरिटीज और ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी नियर अबाउट रहता है, सो ये प्रोसेस रिपीटेडली करना होता है। इफ दोनों का सॉल्युबिलिटी में वास्ट डिफरेंट आ रहा है, सो इजीली वी कैन सेपरेट, दोनों का सॉल्युबिलिटी सेम आ रहा है, सो ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन रिपीट करना पड़ेगा। Example of it, if we have fructose having impurity of sulfur, so we are taking solvent as a ethanol, इसमें क्या रहता है, सल्फर इजीली डिजोल्व हो जाएगा, फ्रुक्टोज इथेनॉल में डिजोल्व नहीं हो रहा है, सो सल्फर रिमेन्स विथ इथेनॉल एंड fructose settle down in the bottom of the vessel, then we have to filter it. So यहाँ पे filter paper आ रहा है, so ये वाला fructose will be separate out and in the liquor, mother liquor, ethanol with sulfur as a filter हो जाएगा। Now for getting pure sugar, yes, we are getting sugar from the molasses, means juice of cane sugar. Cane sugar का juice, इसमें से sugar मिलेगा, sucrose, there is a yellow impurities. So first we have to dissolve into water, then we have to add charcoal. So ये yellow impurities यहाँ पे adsorb हो जाएगा on the surface, or pure sugar remains in the water. So we can separate out pure compound and impurities inside it. Now third method we are going to discuss now distillation. Third method is distillation. This important method is used to separate which type of organic compound we can purify by this method. So first condition, volatile liquid from non-volatile impurities. Volatile क्या रहता है, जो अपना liquid on boiling, on heating, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वो volatile रहेगा। on heating जो वेपर में कन्वर्ट नहीं रहता, वो नॉन वोलेटाइल रहेगा। जो यहाँ पे सॉलिड कंपाउंड में लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्यूरिफिकेशन होगा,
फर्स्ट ऑफ ऑल अपना प्योर लिक्विड कंपाउंड वोलेटाइल होगा और उसका वाला इम्प्योरिटीज वो भी लिक्विड है बट वेपोराइजेशन नहीं होगा, वोलेटाइल नहीं होगा। इस तरह का कंपाउंड में से इम्प्योरिटी रिमूव कर सकते हैं। देन द लिक्विड सफिशिएंट डिफरेंट इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। जो दो लिक्विड का मिक्सचर होता है वी हैव टू सेपरेट, और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में फास्ट बड़ा डिफरेंस आ रहा है। एक वाला बहुत लो बॉइलिंग पॉइंट वाला है, दूसरा वाला हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला, सो वी कैन सेपरेट आउट। Having different boiling point, vaporize at different temperature. Obviously, दोनों का boiling point different आ रहा है, so दोनों different temperature पे boil होगा। The vapors are cooled and the liquids of form are collected separately. Now we are giving example. ये वाला round RB flask means round bottom flask which is taken on the table. There is a gauze नेट रहता है, इसके नीचे अपना बर्नर रहेगा, यहाँ पे थर्मोमीटर रखा हुआ है। या सपोज वी हैव ए मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये वाला क्लोरोफॉर्म हो गया, एंड एनिलीन, C6H5NH2 इज एनिलीन। एनिलीन और क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर दिया है, वी हैव टू सेपरेट बोथ। सो यहाँ पे क्या होगा, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। ये वाला 334 केल्विन पे बॉईल हो जाएगा, ये वाला 457 केल्विन पे बॉईल होगा। सो मिक्सचर इज टेकन हियर फर्स्ट। नाउ वी हैव टू मेंटेन टेम्परेचर। We boil first our mixture at 334 Kelvin. So क्या होगा, at 334 Kelvin टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, so only chloroform volatile रहेगा। And now gaseous form of chloroform moves from this tube. Yes, aniline bottom में यहाँ पे वेसल में रह जाएगा। अपना वाला क्लोरोफॉर्म, इसका बॉइलिंग पॉइंट 334, ये फर्स्ट बॉईल हो जाएगा। ओनली क्लोरोफॉर्म कम्स आउट बाय ट्यूब। ये यहाँ पे जो गैस आ रहा है उसको कूल डाउन करना रहता है, उसका कूलिंग करने के लिए यहाँ कंडेंसर बोलते हैं। यहाँ ट्यूब के आसपास रनिंग वाटर रहेगा, कूल वाटर यहाँ से इनर्ट होगा, यहाँ से आउट होगा, सिंक में चला जाएगा। कोल्ड वाटर सराउंडिंग में रहेगा। सो क्या रहेगा, ये वाला ट्यूब, ये गैस ट्यूब में से बाहर ना रहा है, ट्यूब की आसपास सराउंडिंग में कूल वाटर पास हो रहा है। सो ट्यूब क्या होगा, कूल हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। सो ऑब्वियसली ये वाला गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और हॉट वाटर यहाँ से आउटलेट हो जाएगा। यहाँ पे एज ए ड्रॉप यहाँ से वी कैन कलेक्ट प्योर क्लोरोफॉर्म लिक्विड सब्सटेंस। नाउ देन आफ्टर ऑल द क्लोरोफॉर्म इज कम आउट सेपरेटेड, देन रिमेनिंग क्या रहेगा, एनिलीन। नाउ वी हैव टू बॉईल एट 457 केल्विन। सो क्लोरोफॉर्म तो सब चला गया, एट 457 ओनली aniline boil हो जाएगा। then we can also collect, we have to take another vessel and we can separate both, separated by technique of distillation. The liquid mixture is taken in RB flask, means round bottom flask, added carefully on heating, vapors of lower boiling component, इसमें दो component आ रहा है मिक्सचर में, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन। जो लो बॉइलिंग वाला कंपोनेंट होगा और फॉर्म फर्स्ट मिलेगा, तो वेपर्स आर कंडेंस। कंडेंसेशन में क्या रहता है, ये वाला यहाँ से जो गैस आ रहा है लिक्विड का फॉर्म हुआ, वो यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला कंडेंसेशन रहेगा।
The vapors are condensed by using condenser and the liquid is collected in a receiver. ये वाला receiver रहेगा. The vapor of higher boiling component form later and the liquid can be collected separately. Then after at high temperature, when we maintain 334 Kelvin for chloroform, we get chloroform here pure. When we heating after 457, second vessel यहाँ पे लेना होता है, वहाँ पे at 457 aniline we can collect. This is method of distillation where two liquids we can separate out. Now fractional distillation. हमने डिस्टिलेशन देखा, वो क्या कर रहा था, जो दो लिक्विड था उसका बॉइलिंग पॉइंट में वास्ट डिफरेंट था, सो वी कैन प्यूरिफाई बाय यूजिंग दिस मेथड. बट ये वाला फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है. इसमें क्या रहता है, जो दो लिक्विड्स होता है, इफ द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड इज नॉट मच, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट नियर अबाउट आ रहा है, सो वी can't use simple distillation. Here we have to use a fractional distillation. दो लिक्विड का मिक्सचर जो बॉइलिंग पॉइंट दोनों का सेम आ रहा है, सो उसको सेपरेट करने के लिए नियर अबाउट रहता है. सेम मीन्स के नियर अबाउट. सो क्या करना होता है, when we take a table, there is a goes means नेट होता है, वायर गोज वायर का, इसके ऊपर एक बाउल रखा है, वहाँ पे ऑयल रखा है, ये वाला राउंड आरपी फ्लास्क रहेगा, इसमें लिक्विड टू डिस्टिल्ड जिसका डिस्टिलेशन करना है वो. यहाँ पे एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम विथ पैकिंग. इसमें क्या रहता है, जो ग्लास होता है कांच, उसका छोटा छोटा पीसीस यहाँ पे फिलअप किया हुआ रहता है, और यहाँ पे थर्मोमीटर दिया है, यहाँ से गैस आउट हो जाएगा. ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कंडेंसर होगा, यहाँ से लिक्विड वी कैन कलेक्ट, ये रिसीवर हो गया. सो ये किस पर्पस पे काम आता है. नाउ दो लिक्विड्स, इसका बॉइलिंग पॉइंट नियर अबाउट है, सो ये बाउल रखा हुआ है, बाउल में ऑयल बाथ बोलते हैं. ऑयल इसलिए यहाँ पे फिलअप किया हुआ है, सो ये राउंड ब्लॉक फ्लास्क को टेम्परेचर सभी जगह से मिल जाए, सो दोनों लिक्विड यहाँ पे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. सो जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाला है वो ऊपर तक जाएगा, उससे लेस बॉइलिंग पॉइंट वाला है वो थोड़ा सा कम हाइट तक जाएगा. जो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो यहाँ पे लिक्विड में थोड़ी देर ऊपर जाने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और वापस आ जाएगा. जो उसका हीट गेन किया हुआ है वो हीट वो छोटे छोटे ग्लास के पीसीस को देगा. सो इससे क्या होगा, हीट कन्वर्ट हो जाएगा. वो ग्लास वाला पीसेस जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था वो गैस बनने के बाद लिक्विड में वापस नीचे आ रहा है, वो लिक्विड बन जाएगा. सो हीट तो ट्रांसफ़र करेगा, हीट ग्लास का पीसेस गेन करेगा. देन ये वाला क्या करेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है उसको हीट मिल जाएगा, सो गैस ओके कंटिन्यू यहाँ से बाहर आ जाएगा. सो जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है वो यहाँ से आ जाएगा, ये कंडेंसर बोलते हैं. यहाँ से कोल्ड वाटर आ रहा है, यहाँ से हॉट वाटर बाहर आ जाएगा, और ये अपना वाला जो गैस है लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं. सो जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो था वो बाहर आ जाएगा, हाई होगा वो यहाँ पर आएगा, फिर लिक्विड में कन्वर्ट होके वापस चला जाएगा, और ये हीट ग्लास के छोटे छोटे पीसेस को देगा. सो बॉइलिंग पॉइंट लो रहेगा, वो बाहर आ जाएगा. ये वाला फ्रैक्शनेटिंग कॉलम रखा हुआ है, सो इसे
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। ये वाला मार्केट में जो आरबी फ्लास्क और ये वाला अपना कनेक्टर होता है, इसके बीच कनेक्टेड हुआ है कॉलम, पैकिंग किया हुआ है, एयर टाइट किया हुआ है। सो ये वाला एयर टाइट हो जाएगा। सिर्फ प्योर कंपाउंड बॉइलिंग पॉइंट लो रहेगा, वही बाहर आ जाएगा। दो तरह के मार्केट में दिस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आर अवेलेबल। सिंपल पैक्ड कॉलम रहता है, इसमें छोटे छोटे ग्लास के पीसेस कट किया हुआ, फिलअप किया हुआ होता है, उसको आरबी फ्लास्क और ये वाला कंटेनर के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे थर्मोमीटर रहेगा, इससे क्या टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं नियर अबाउट 310 to 320। दूसरा मेटल का प्लेट रहता है दिस टाइप ऑफ 100 और मोर देन 100 प्लेट्स इज प्लेस्ड हियर। सो यहाँ से ये वाला ग्लास को हीट दे रहा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है वो हीट देगा। यहाँ पे फर्स्ट वो गैस में कन्वर्ट होगा, देन आफ्टर ये वाला हीट ग्लास को देके वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ये वाला मेटल का जो प्लेट होता है, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट लो रहेगा, वो यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा, वो प्लेट को हीट दे के वापस लिक्विड फॉर्म में अपने आरबी फ्लास्क में चला जाएगा। ये बबल प्लेट कॉलम बोलते हैं। ये सिंपल प्लेट, इसमें ग्लास का पीसेस फिलअप हुआ, यहाँ पे मेटल का प्लेट 100 और मोर देन 100 रखा हुआ था। इसका एग्जाम्पल, दिस मेथड इज यूजफुल इन क्रूड ऑयल, इन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज। Yes, from the earth crust, when we derive crude oil, so we can separate out by using this method. इसमें से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इसका बॉइलिंग पॉइंट नियर अबाउट रहता है। We can separate using this method that is called fractional distillation. Now, last point of the day, distillation under reduced pressure. ये वाला डिस्टिलेशन, फर्स्ट ऑनली डिस्टिलेशन, सेकेंड वाला, 4 तरह के डिस्टिलेशन हो रहे हैं। सेकेंड वाला फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया। थर्ड वन इज डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। ओके, दिस मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई लिक्विड्स हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। जो लिक्विड्स रहता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, और दोज विच डिकम्पोज, इसका लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा है, और ऑन दैट टेम्परेचर विच इजीली डिकम्पोज हो जाएगा, अपना कंपाउंड एज इट इज नहीं रहेगा। सो इस हिसाब से क्या करना रहता है, यस, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है उसका प्रेशर डिक्रीज करना होता है। एट रूम टेम्परेचर, सॉरी, एट 100 डिग्री सेल्सियस व्हेन वी टेक वाटर इनटू वेसल, सो ये वाला वाटर वेपर बनाएगा। व्हेन द प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर होगा तब उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 हो जाएगा। If when we decrease pressure, ये वाला प्रेशर 0.5 एटमॉस्फेयर हो गया सपोज इनसाइड, सो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। यस, दैट इज रिड्यूस। सो इसके हिसाब से बेनिफिट क्या रहेगा, जो अपना कंपाउंड इजीली डिकम्पोज हो रहा था वो डिकम्पोज नहीं होगा। उसका डिकम्पोज मीन्स का अनदर कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं होगा, इजीली सेपरेट कर सकेंगे। तो क्या करता है, एक आरबी फ्लास्क लिया हुआ है, बर्नर के साथ अटैच है, यहाँ से लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई है वो बॉइल होगा। ये वाला एक सेफ्टी वाल्व दिया हुआ है। वाई, कोई भी वेसल का प्रेशर डिक्रीज करेंगे, सो आउटर प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, इनर इज लेस देन 1, सो ये वाला वेसल ब्रेक हो जाएगा।
सो ब्रेक ना हो पाए इसलिए सेफ्टी एक सेफ्टी स्टॉप वॉच रखा हुआ है। सो क्या करेगा, प्रेशर एक लिमिट के बाद डिक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ से बबल होके आउट हो जाएगा और वेसल अपना क्रैश नहीं होगा। यहाँ पे थर्मामीटर रखा हुआ है। व्हेन वी बॉइल सो इसका वेपर यहाँ से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे कोल्ड वाटर, ये वाला सबको मालूम है ना, कंडेंसर है, कोल्ड वाटर इनलेट हो रहा है और हॉट वाटर कमिंग आउट। सो लिक्विड इज कन्वर्टिंग इन गैस, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वी कैन कलेक्ट। ये वाला मेन वैक्यूम पंप रहता है। इफ प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर इनसाइड रहेगा सो बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा। सो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है लाइक ग्लिसरॉल मीन्स ग्लिसरीन, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई रहता है और वो बॉइलिंग पॉइंट पे व्हेन भी हीट करेंगे तो इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। सो हमको क्या करना था, इसका प्रेशर डिक्रीज करना है। सो इट बॉइल्स लो टेम्परेचर और डिकम्पोज नहीं होगा। सो यहाँ से वैक्यूम पंप लिया हुआ है। ये मैनोमीटर क्या करता है, उसका प्रेशर यहाँ पे देख सकते हैं। वैक्यूम पंप से हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से उसका एयर खींच लेंगे। सो उसका इनसाइड प्रेशर डिक्रीज हो गया, जो बॉइलिंग पॉइंट हाई था वो लो चला गया। सो डिकम्पोज नहीं होगा और ये वाला ग्लिसरीन होता है वो गैस में कन्वर्ट होके यहाँ कंडेंसर में आ जाएगा। लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा एट लो टेम्परेचर, देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट और इसका वेपर यहाँ पे आ गया और यहाँ देख सकते हैं टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है और कंडेंसर में वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। डिस्टिल प्योर लिक्विड वी गेट्स इम्प्योरिटी यहाँ पे रह जाएगा। और मैनोमीटर से हम देख सकते हैं इसका एटमॉस्फेयर लेस देन 1 आ गया। सो प्योर ग्लिसरीन वी कैन डिराइव सम एग्जांपल क्या रहता है, व्हेन वी मेक soap, so byproduct is glycerin can be separate from spent light in soap. We are forming soap in the factory. So soap के साथ glycerin as a byproduct मिल रहा है। So soap यहीं पे रह जाएगा। सोप में से ग्लिसरीन सेपरेट करना पड़ से, बट ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई, ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो डिकम्पोज हो जाएगा और वी कांट गेट ग्लिसरीन। सो क्या रहेगा, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज कर देंगे। सो बॉइलिंग पॉइंट ग्लिसरीन का लेस हो जाएगा एंड ग्लिसरीन वी कैन सेपरेट आउट फ्रॉम द सोप। सोप के साथ ग्लिसरीन का मिक्सचर मिल रहा है। सो सोप में से ग्लिसरीन का मिक्सचर सेपरेट करने के लिए we can use this method. Manometer gives information of its pressure inside and thermometer gives information of its temperature. Now bye. We will meet in our next lecture. Till then, bye.